Hello guys, welcome back to another video of Indian Polity. I'm Lakshmi Kant and we are going to continue our chapter that is chapter 7, fundamental rights. So let's begin, and sorry for not posting videos since last 5 to 6 days. Now I'll try to continue. Okay, so let's begin. The term state has been used in different provisions concerning the fundamental rights. Hence, Article 12 has defined the term for the purposes of Part 3rd. According to it, the state includes the following. जो state है उसको उसका क्या यूज वो क्या क्या इंक्लूड करता है. सबसे पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट. ऑल लोकल अथॉरिटीज़, दैट इज़ म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ETC. All other authorities, that is statutory or non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. ये सारी जितनी भी बॉडीज़ हैं ये सारी स्टेट को कंसिस्ट करती हैं, ओके, इंक्लूड करती हैं. To the Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कोई भी प्राइवेट बॉडी है जो कि स्टेट के अंडर में काम करती है, स्टेट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा आर्टिकल 12 के अंतर्गत. ओके, नई हेडिंग है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है. Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. In other words, it expressively provides for the doctrine of judicial review. क्या कहता है, ऐसे कोई भी लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच नहीं खाते हैं उनको वॉइड करार दे दिया जाएगा. ठीक है, मतलब उनको खारिज कर दिया जाएगा. दूसरे शब्दों में कहें, इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये जो लॉ है ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड if found that it is violative of fundamental right. Okay, this power has been confirmed on the Supreme Court Article 32 and the High Courts Article 226 that can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the fundamental rights. Article 32 के अंतर्गत ऐसे किसी प्रोविज़न को नल एंड वॉइड करार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये पावर हाई कोर्ट के पास भी. ओके, law in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following: permanent laws enacted by the parliament or the state legislatures. क्या क्या लॉज हैं जो कि क्या प्रोविजंस हैं जिनको लॉ माना जाता है. ठीक है, जैसे कि पहला है परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स. ऐसे कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लाती है वो लॉ के कैटेगरी में माना जाएगा. ठीक है. Laws like ordinances issued by the president or the state governors. तीसरा है statutory instruments in the nature of delegated legislation, executive legislation like order, bylaw, rule, regulation or notification, and non-legislative sources of law, that is custom or usage having the force of law. Thus, not only a legislation but by any of the above can be challenged the courts as violating a fundamental rights and hence can be declared as void. ये जितनी भी प्रोविजंस ऊपर दिए गए हैं, चाहे वो कोई भी लॉ हो, पार्लियामेंट बनाए, स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट से मैच नहीं खाते हैं तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा. The term law in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following. Sorry, I am going to repeat this line. Sorry. Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. However, the Supreme Court held in the Kishwananda Bharti case 1970 that a constitutional amendment can challenge on the ground that it violates a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution and hence can be declared as void. पहले ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, राइट. लेकिन
1973 में केशवानंद भारती जब केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इनको अगर वायलेटिव पाया जाता है फंडामेंटल राइट्स के और बेसिक स्ट्रक्चर तो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इनको भी डिक्लेयर खारिज किया जा सकता है, ठीक है. दे कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड. Before discussing further heading, let's discuss this table, and it is very very important from examination point of view. You will find one or two questions in every examination from this particular table. So let's discuss what is this. So it is fundamental right अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरनर्स. कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ भारतीय सिटीजन्स को मिले हैं, फॉरनर्स को नहीं मिले हैं. ऑन द अदर हैंड इट इज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस. ठीक है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ मतलब दोनों को मिले हैं, सिटीजन्स को भी एंड फॉरनर्स को भी. एनिमी एलियंस का मतलब जो ऐसे कंट्री के सिटीजन जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा है, ये राइट्स उनको अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सिर्फ फ्रेंडली एलियंस को ही हैं मिले हैं. तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ, इसको प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 15. ये किसको अवेलेबल है? सिर्फ सिटीजन्स को. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो दी गई है वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरनर्स को नहीं. प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एज रेसिडेंस एंड प्रोफेशन आर्टिकल 19. प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29. राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 30. 15, 16, 19, 29, 30 ये 1, 2, 3, 4 ऐसे ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, फॉरनर्स को नहीं. नाउ लेट्स डिस्कस दोज राइट्स विच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज टू फॉरनर्स. द वेरी फर्स्ट वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आर्टिकल 14. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज आर्टिकल 20. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21. राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट and detention in certain cases article 22. Prohibition of trafficking in human beings and forced labor article 23. Prohibition of employment of children in factories etc article 24. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion article 25. Freedom to manage religious affairs article 26. Freedom from payment of taxes for promotion of any religion article 27. Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions article 28. Okay, so let's summarize. Article 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. These are some fundamental rights which are available to both citizens as well as foreigners. Okay, so this was our discussion for today. We will continue with our next heading, that is right to equality, in our next video. If you like my initiative, please like my video, subscribe my channel, share with your friends. Thank you. Stay tuned. Bye bye.